رب تعالیٰ کی ذات نے میاں بیوی کے رشتے کو اتنا عظیم اور مقدس رشتہ کہا ہے۔ علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ الکبریٰ نے میرا اس وقت ساتھ دیا ہے جس وقت میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ اور السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر ہے جو میں بالکل ٹھیک ہوں، امید کرتا ہوں آپ بھی ٹھیک ہوں۔ جہاں میرا خوش رہے بات رہے پورے کی طرح سے مسکراتے رہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مناہل اکرم لوگ۔ تو آج ہی ہماری بھابھی کی سال ثواب کے لیے قرآن خوانی ہے اور اس پہ حافظ صاحب نے بیان کیا، بہت ہی ماشاءاللہ خوبصورت بیان کیا میاں بیوی کے بارے میں، تو اور بھی ماشاءاللہ بہت پیارا بیان ہے۔ تو آپ سب بہن بھائیوں نے ویڈیو فل واچ کرنی ہے، تو چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف۔ تمام حضرات کو آواز بلند درود شریف پڑھیں۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم، وہ بخشتا ہے گناہ عظیم بھی لیکن ہماری چھوٹی سی نیکی سنبھال رکھتا ہے، ہم اسے بھول جاتے ہیں روشنی میں مگر وہ تاریکی میں بھی خیال رکھتا ہے، وہ بخشتا ہے گناہ عظیم بھی لیکن ہماری چھوٹی سی نیکی سنبھال رکھتا ہے، ہم اسے بھول جاتے ہیں روشنی میں مگر وہ تاریکی میں بھی خیال رکھتا ہے، گھروں میں جن کے دیے نہیں ہے ان کے لیے فضا میں چاند ستارے اچھال رکھتا ہے، جو کبھی دیر سے لوٹوں تو میری ماں کی طرح وہ میرے رزق کا حصہ نکال رکھتا ہے، محبت اپنے بندوں سے کمال رکھتا ہے، وہ اللہ ہی ہے جو سب کا خیال رکھتا ہے۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، مجھے چہروں کا دم اترا سوتے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئی آخر، حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئی آخر، نہ جسم تیرا نہ جان تیری کہ ترکا رب رحمان کہے، نہ جسم تیرا نہ جان تیری کہ ترکا رب رحمان کہے، خودے حکم بغیر تو بے بس ہیں اے فیصلہ پڑھ قرآن کہے، میرے جسم تے میری مرضی ہے اے وہم و گمان انسان کہے، تیرے جسم تے تیری مرضی ہے اے وہم و گمان انسان کہے، تیری میری روح شاکر مالک دی تیرا میرا ڈھانچہ قبرستان کہے۔ میرے واجب الاحترام قابل صد اعزاز تکریم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیت مبارکہ اور حضور علیہ السلام کے فرامین میں سے ایک فرمان آپ حضرات کے سامنے عرض کیا ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق سچ عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو مجھ کو سن کر سمجھ کر پڑھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے معزز دوستو، اس وقت میں اور آپ حاجی محمد عبداللہ صاحب کی بہو، بھائی محمد اختر صاحب کی اہلیہ، ہمارے امام صاحب، ہمارے استاد محترم، ہمارے علاقے اور محلے کے بچوں کے اساتذہ قاری محمد ظاہر صاحب کی بھابھی صاحبہ کی روح کے احصال ثواب کے لیے سب حضرات جمع ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرمائے۔ میرے دوستو، جو بھی اس دنیا کے اندر آیا ہے اس نے ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ وجہ کائنات، تخلیق کائنات، حضور علیہ السلام جب دنیا کے اندر نہیں رہے تو میں اور آپ کون ہیں جو اس دنیا کے اندر ہمیشہ کے لیے رہیں گے؟ رب تعالیٰ کی ذات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرما دیا، کل من علیہا فان، ہر چیز نے ایک نہ ایک دن یہاں سے فنا ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اگر نام رہے گا ازل سے لے کر ابد تک، شروع سے لے کر آخر تک صرف اور صرف رب تعالیٰ کی ذات کا نام دنیا کے اندر باقی رہے گا۔
میرے دوستوں، بھائی اختر صاحب کی اہلیہ کا انتقال ہوا، گھر والی کا چلے جانا یہ بہت بڑا سانحہ ہوا کرتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے دوسرے پارے کے اندر سورۃ البقرہ کے اندر رب تعالیٰ کی ذات نے میاں بیوی کے رشتے کو، میاں بیوی کے جوڑ کو ہن لباس لکم وانتم لباس لہن کے لفظوں سے تعبیر کیا ہے۔ میں نے آپ نے جسم کے اوپر یہ لباس پہنا ہوا ہے، اگر نعوذ باللہ کسی آدمی کے جسم کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب ہے تو وہ ڈھکا ہوا ہے، چھپا ہوا ہے، نظر نہیں آ رہا، ظاہر نہیں ہو رہا۔ رب تعالیٰ کی ذات نے میاں بیوی کے رشتے کو اتنا عظیم اور مقدس رشتہ کہا ہے۔ گھر کے اندر، کمرے کے اندر جس طرح مرضی ہو، لیکن جس وقت اہل و عیال کے سامنے، والدین کے سامنے، رشتہ دار احباب کے سامنے، عزیز و اقارب کے سامنے پیش ہوں گے، محبت کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوں گے، لوگ ان کے لیے مثال کہیں گے، فلانی جوڑی بڑی اچھی ہے، فلانا ادب و احترام فلانے کا کرنے والا ہے۔ بیوی اپنے گھر والے کو عزت دیتی ہے، گھر والا اپنی بیوی کو عزت دیا کرتا ہے۔ میرے دوستو، سیرت اور تاریخ کی کتابوں سے ملتا ہے حضور علیہ السلام کا پہلا نکاح ام المؤمنین طیبہ طاہرہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہوا۔ حضور علیہ السلام کے 4 صاحبزادیاں، 2 صاحبزادے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بدن مبارک سے پیدا ہوئے۔ جس وقت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کے اندر حضور علیہ السلام نے اپنا دوسرا نکاح نہیں کیا۔ ویسے حضور علیہ السلام کی 11 ازواج مطہرات تھی۔ جس وقت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا سے پردہ فرما گئی، حضور علیہ السلام پریشان رہا کرتے تھے، حزن اور ملال اور غم کی کیفیت رہا کرتی تھی۔ حضور علیہ السلام ہمیشہ اس دکھ کے اندر رہا کرتے تھے۔ کہنے والوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اس وقت بالکل 25 سالہ عمر مبارک کے اندر آپ نے نکاح خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ فرمایا۔ اس وقت تاریخی اور تفسیری اور اختلافی روایات کے مطابق خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک 40، 42 یا 45 سال کے لگ بھگ تھی۔ ان کے چلے جانے کے بعد آپ ہمیشہ اس کیفیت کے اندر کیوں رہتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، مکہ مکرمہ کی دھرتی کے اوپر محمد کو کوئی تجارت کے لیے کچھ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ محمد کو نعوذ باللہ لوگ برا کہا کرتے تھے۔ اسلام اعلاء کلمت اللہ بلند کرنے سے پہلے اگر کسی عورت نے اپنا مال و متاع میرے اوپر خرچ کیا ہے، جس عورت کے مال کو میں نے اپنا مال سمجھا ہے، جس عورت کی جائیداد وراثت کو میں نے اپنا مال سمجھ کر خرچ کیا ہے، استعمال کیا ہے، وہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ میرے دوستو، حضور علیہ السلام نے فرمایا، مدینہ منورہ کی دھرتی کے اوپر آج میں نکلتا ہوں، لوگ مجھے ملتے ہیں، مجھ سے گفتگو کرتے ہیں، میرے نعرے بلند کرتے ہیں، مجھے صادق اور امین کہتے ہیں، میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، میرے ساتھ رشتہ داریاں کرنا اپنے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات سمجھتی ہیں۔ لیکن خدیجہ الکبریٰ نے مجھے اس وقت سنبھالا ہے، میرا اس وقت ساتھ دیا ہے، میرا اس وقت سہارا بنی ہے۔ چہ جائے کہ وہ بیوہ تھی، 2 جگہ سے پہلے بیوہ ہو چکی تھی، میں ان کا سہارا بنا ہوں، لیکن محمد کو سہارا۔ سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تعظیم جس نے کی محمد کے نام کی، سوئے بیٹھے ہیں، تعظیم جس نے کی محمد کے نام کی، اللہ نے اس پر آتش دوزخ حرام کی۔ سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ میرے دوستو، حضور علیہ السلام نے فرمایا، خدیجہ الکبریٰ نے میرا اس وقت ساتھ دیا ہے جس وقت میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے، رب تعالیٰ کی ذات نے مجھے 4 صاحبزادیاں،
दो साहबजादे खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बतन मुबारक से अता किए हैं, इस वजह से सबसे ज्यादा मुझे मोहब्बत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से है। मेरे दोस्तों, अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा जवानी और शबाब के आलम के अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के निकाह के अंदर आई। कोई चीज घर के अंदर आ जाया करती थी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया करते थे, मेरी आयशा, मेरी हुमैरा, ये फलां चीज खदीजतुल कुबरा की फलानी सहेली के घर भेजो, ये फलां चीज खदीजतुल कुबरा की फलानी हमसाई के घर भेजो। अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, मैंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आप हर वक्त खदीजतुल कुबरा के तज़किरे करते रहते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरा जितना साथ मेरी उस बीवी ने दिया है, आज तक मेरा इतना साथ किसी दूसरी बीवी ने नहीं दिया। मेरे दोस्तों, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं। हमारे दरसे निजामी के निसाब के अंदर पहले साल के अंदर गुलिस्तान सादी उनकी किताब पढ़ाई जाती है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह अपनी बड़ी दानाई फहमो फिरासत वाली बातों के अंदर फरमाते हैं, मियाँ बीवी का रिश्ता ये इतना अजीज रिश्ता है, इतना अजीम रिश्ता है, दो खानदानों का आपस के अंदर मिलाप हो गया, मियाँ बीवी का आपस के अंदर निकाह हो गया, कभी देखा नहीं, कभी उस घर के अंदर आई नहीं, उसके मिजाज को देखा नहीं, वो किस मिजाज का है, किस जहन का है, क्या अपना वो दिमाग रखता है, लेकिन तीन लफ्ज कहने के ऊपर, तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल, वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर उस बंदे के घर के अंदर आ जाती है। समझने की बात है जो हजरत सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इतना अजीम रिश्ता है कि वो औरत जिस खामिद के घर के अंदर आ गई, दुनिया के अंदर अब उसको उसके बाप के नाम से नहीं, उसके खामिद के नाम से पुकारा जाएगा। अगर ये इस दुनिया से चली गई, हर किसी ने जाना है, इस चले जाने के बाद उसकी कब्र के ऊपर जो कतबा लगाया जाता है, उसके ऊपर जो नाम लिखा जाएगा, वो अब्बा का नहीं, वालिद का नहीं, शादी से पहले जो वारिस था उसका नाम नहीं, बल्कि उसके खामिद का नाम लिखा जाता है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, और ये इतना नाजुक रिश्ता है, इतना कच्चे धागे की तरह रिश्ता है, तीन लफ्ज कहने की वजह से वो हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के ऊपर हराम हो जाते हैं। किसी कहने वाले ने बड़ी अच्छी बात कही, मेरी बेटी किसी के घर के अंदर हो, वहां वो खुशहाल रह रही हो, ठीक रह रही हो, हमारा जो दामाद है उसको वो अच्छा समझता हो, हम कहते हैं हमें लड़का बड़ा अच्छा मिल गया है। अगर नऊज़ बिल्लाह मेरे घर के अंदर, मादरत के साथ मेरे दोस्तों, मेरे घर के अंदर मेरी बहू मेरे बेटे के साथ खुशहाल रह रही हो, ठीक रह रही हो, अदब व एहतराम कर रही हो, तो मादरत के साथ मेरे दोस्तों, और कोई कहे न कहे, सास जरूर कहा करती है, लगता है मेरे बेटे के ऊपर तवीज़ का असर हो गया। शरीयत के अंदर ये नहीं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मियाँ बीवी एक दूसरे को जिस वक्त मोहब्बत की निगाह से देखते हैं, रब ताला की जात आसमानों के ऊपर खुश रहते हैं। मैंने आप हजरात के सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद की जो आयत मुबारका पढ़ी, रब ताला की जात फरमा रहे हैं, कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए, आप कह दीजिए, मौतल्लज़ी, तुम्हें हर हाल के अंदर मौत ने आकर पकड़ना है, तफिर्रून, उससे तुम्हें छुटकारा नहीं, उससे तुम्हें फरारी नहीं, उससे तुम्हारा भागना नहीं, मौत से तुम किसी हालत के अंदर भी न छुटकारा पा सकते हो, न छूट सकते हो, ना ही तुम इससे बच सकते हो। फइन्नहु मुलाक़ीकुम, हर हालत के अंदर मौत ने तुम्हारे साथ आकर मुलाकात करनी है, तुम्हारे साथ मिल जाना है। दूसरे मकाम के ऊपर मेरे दोस्तों, रब ताला की जात ने फरमाया, ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, तुम बड़े बड़े महल्लात बना लो, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना लो, बड़े बड़े तुम प्लाजे खड़े कर लो, यहाँ तक के सीसा बनाई हुई दीवार के अंदर तुम अपनी रिहाइश इख्तियार कर लो,
मौत तुम्हें वहां आकर भी पकड़ेगी, वहां भी तुम्हें मौत से छुटकारा नहीं मिल सकता। तीसरी आयत मुबारका के अंदर मेरे दोस्तों रब ताला की जात ने फरमाया तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, इस मुल्क के बनाने वाले, इस हुकूमत के निजामों को चलाने वाले, इस दुनिया के निजामों को, रात दिन को, गर्मी और सर्दी को, खिज़ां और बहार को, तमाम चीजों के बनाने वाले तनो तनहा रब ताला की जात है। कह दीजिए बेशक। कुरान मजीद फुरकान हमीद के 7वें पारे के अंदर और एक और मकामात के ऊपर भी रब ताला की जात ने फरमाया बदीउस समावाति वल अर्द, आसमानों और जमीनों का बनाने वाला, पैदा करने वाला मैं हूँ। कह दीजिए बेशक। बदी उसको कहा जाता है जो बगैर किसी नमूने के, बगैर किसी शक्ल सूरत के, बगैर किसी हायत के उस चीज को खड़ा कर दे। मैं और आप 2 मरले का घर बनाएं, 10 मरले का घर बनाएं, मस्जिद को तामीर करें, दुकान को तामीर करें, नक्शा नवीस के पास जाते हैं, हमें इसके दरवाजे निकाल के दो, खिड़कियां निकाल के दो, लंबाई और चौड़ाई बना कर दो, कितने कमरे बन सकते हैं, किस किस्म की रिहायश यहाँ इतने मरलों के अंदर बन सकती है। मैं और आप मोहताज हैं। बदी उस जात को कहा जाता है जो बगैर किसी नक्शे के, बगैर किसी तसव्वुर के सातों आसमानों को खड़ा कर दे, जमीनों को खड़ा कर दे, दरख्तों हजर शजर को खड़ा कर दे, गर्मियों के अंदर गर्मियों के फल मुझे और आपको दस्तयाब कर दे, सर्दियों के अंदर ऐसी चीजें, ऐसी नबातात, ऐसे अनाज, ऐसे गर्म चीजें, अखरोट वगैरह दस्तयाब कर दे। इस निजाम के बनाने वाले, इस निजाम के चलाने वाले तनो तनहा रब ताला की जात है। किसी कहने वाले ने बड़ी अच्छी बात कही, किससे कहे, किससे मांगे, कहां जाए और दुनिया में हाजत रवा कौन है। सुभान अल्लाह। आपका ज्यादा वक्त नहीं लेते, जो हज़रत कारी साहब ने वक्त दिया इंशाअल्लाह उसी पर बात खत्म होगी। बल्कि पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं, किससे मांगे, कहां जाए, किससे कहे और दुनिया में हाजत रवा कौन है। सबका दाता है तू, सबको देता है तू, तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है। कौन माबूद है, कौन मकबूल है, बेखबर क्या खबर तुझको क्या कौन है। जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पर, तब खुलेगा कि खोटा खरा कौन है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हम लोगों को नेक दिसना चाहते हैं, नेक नजर आना चाहते हैं। मैं इमाम साहब हूँ, मैं मौलवी साहब हूँ, वक्त के ऊपर अज़ान देता हूँ, वक्त के ऊपर नमाज पढ़ता हूँ, ये लोगों को मैं दिखलाना चाहता हूँ, दिखना चाहता हूँ मेरे अंदर क्या है। शैतानियत है, मुनाफिकत है, अपने नमाजियों के लिए कितनी मोहब्बत है, कितनी नफरत है, ये रब ताला की जात जानते हैं। मेरे दोस्तों हज़रत नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमा गए, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर तुझको क्या कौन है। जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पर, जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पर, तब खुलेगा कि खोटा खरा कौन है। अंबिया, औलिया, अहले बैते नबी, ताबिईन और सहाबा पे जब आवरी, बड़ी तवज्जो तलब बात है, किसी मुल्ला मौलवी की बात नहीं, हज़रत पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अंबिया, औलिया, अहले बैते नबी, ताबिईन और सहाबा पे जब आवरी, गिर के सजदे में सबने यही कहा, तू नहीं तो मुश्किल कुशा कौन है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, मुल्क का निजाम चलाने वाले, बनाने वाले, इसके निजाम को संभालने वाले, बियदिहिल मुल्क तनो तनहा रब ताला की जात है। वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, वो अकेला कादिर मुतलक है, अलीमुम बिगातिस सुदूर है, अला कुल्ली शैइन कदीर है, उसके अंदर कोई दूसरा वारिस नहीं, उसके साथ दूसरा कोई शरीक नहीं, ये तमाम का तमाम निजाम चलाने वाले तनो तनहा रब ताला की जात है। अल्लज़ी खलक़ल मौत, जिसने मौत को पैदा किया, वल हया और जिंदगी को बनाया। तवज्जो मेरे दोस्तों, उलमा मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन हज़रात फरमाते हैं, अल्लज़ी खलक़ल मौत, जिसने मौत को पैदा किया। पहले बंदा दुनिया के अंदर आता है, यहाँ अपनी जिंदगी गुजारता है, फिर उसको आकर मौत पकड़ती है, वो चला जाता है। रब ताला की जात ने यहाँ लफ्ज़ मौत को पहले इस्तेमाल किया, हयात जिंदगी को बाद में इस्तेमाल किया।
उलमा मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन हजरात फरमाते हैं, रब ताला की जात फरमाते हैं, और बेखबर आदमी दुनिया के कामों के अंदर ना मशगूल हो जाना, रोजी रोटी कमाने के अंदर ना इतना मसरूफ हो जाना, रब ताला की जात को नहीं भुलाना। मेरा और आपका काम क्या है? सुबह से उठते हैं, शाम तक पैसे कमाने के अंदर लगे हुए हैं, 2 + 2 4 के चक्कर के अंदर लगे हुए हैं। हालांकि रोजी तो रब ताला की जात के दिन में है, जिसके नसीब मुकद्दर के अंदर जितना लिखा हुआ है वो हर हाल के अंदर मिलेगा। मिशकात शरीफ के अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बंदे को रिज़्क इस तरह तलाश करता है जिस तरह मौत बंदे को तलाश किया करती है। आप हजरात मजालिस के अंदर, महफिल के अंदर, नदी महफिल के अंदर एक दूसरे को कह बैठते हैं जी, दाने दाने पे खाने वाले का नाम, ऐसे है या नहीं? दाने दाने पे खाने वाले का नाम। मेरे नसीब मुकद्दर के अंदर, आपके नसीब मुकद्दर के अंदर जितना कुछ लिखा हुआ है, जब तक वो मेरे और आपके पेट के अंदर नहीं पहुंचेगा, उस वक्त तक मैं और आप इस दुनिया से नहीं जा सकते। रब ताला की जात ने मौत का जिक्र पहले किया, खलक़ल मौत, पहले मौत को पैदा किया, वल हयात, फिर जिंदगी का जिक्र किया, इसलिए कि मौत को भी याद रखना, दुनिया की रंगीनियों के अंदर मसरूफ ना हो जाना, दुनिया के नशेबो फराज के अंदर मसरूफ ना हो जाना। ये दुनिया एक न एक दिन खत्म हो जानी है। किसी कहने वाले ने बड़ी अच्छी बात कही, 4 दिन के हैं ये रंग गुल, सुभान अल्लाह कह दीजिए। किसी कहने वाले ने बड़ी अच्छी बात कही, 4 दिन के हैं ये रंग गुल, फिर अंधेरी रात है, हर बहार दुनिया है चंद रोजा, यहाँ न चल सर उठा उठा कर। इसने क्या कहा? बहार दुनिया है चंद रोजा, यहाँ न चल सर उठा उठा कर। खुदा ने ऐसे करोड़ नक्शे मिटा दिए हैं बना बना कर। फलां का बड़ा सिक्का चलता था, फलां का बड़ा कलम चलता था, फलां का बड़ा ओहदा चलता था, फलां के आगे पीछे लश्कर हुआ करता था, लोग संभालने वाले हुआ करते थे, हटाओ बचाओ की सदाएं हुआ करती थी। आज उनके नाम और निशान भी बाकी नहीं रहे। बहार दुनिया है चंद रोजा, यहाँ न चल सर उठा उठा कर। खुदा ने ऐसे करोड़ नक्शे मिटा दिए हैं बना बना कर। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। इस जिंदगी को इस तरह गुजार कर जाना जिस तरह रब ताला की जात ने हुक्म दिया है। नमाज को कायम करना है। नमाज कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर 82, 88 या 32 मकामात पर रब ताला की जात ने फरमाया, वअक़ीमुस्सलाह व आतुज़ ज़कात। मैं और आप नमाजों को कितना अदा कर रहे हैं, मैं और आप नमाजों का कितना ख्याल कर रहे हैं, ज़कात कितनी अदा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात मेरे दोस्तों, नाऊज़ बिल्लाह, हमने अपनी बेटियों का, अपनी बहनों का हक दबाया हुआ है। दूसरे के बारे में नाऊज़ बिल्लाह दिल के अंदर हमने कितनी मोहब्बत और कितनी नफरत रखी हुई है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिस वक्त भी जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरी तरफ तशरीफ लाए, मुझे अपने हमसायों के बारे में बार बार फरमाते रहे, बड़ी सख्ती करते रहे। मैं ये समझा कि शायद ये न हुक्म फरमा दे कि आपकी विरासत और जायदाद के अंदर हमसायों के भी हुकूक हैं। मादरत के साथ मेरे दोस्तों, हमारा ये अलमिया है, हम अखलाक की बिल्कुल पस्ती के ऊपर पहुंच चुके हैं। बेटा अपने बाप का तो वो एहतराम नहीं करता, बाप अपनी औलाद के जो हुकूक हैं उनका ख्याल नहीं करता, खामिद अपनी बीवी के हुकूक का ख्याल नहीं करता, बीवी अपने क्या कहते हैं खामिद के हुकूक का ख्याल नहीं करती, बहन भाई आपस के अंदर बोलचाल नहीं, आना जाना नहीं, ईदें शबरातें गुजर जाती हैं। हम मुल्ला मौलवी आदमी हैं, इमाम मस्जिद आदमी हैं, कई लोग ऐसे आकर कहते हैं जी मेरे बच्चों के मामू ईद का दिन गुजर गया, हमारे घर तशरीफ नहीं लाई, मेरे बच्चों ने अपने मामू को नहीं देखा, मेरी घरवाली आज ईद का दिन है परेशान रही, रो रही थी, इतने साल गुजर गए, इतने महीने गुजर गए, यार ईद का दिन है, आज तो भाइयों के घर से कुछ आ जाता। मेरे दोस्तों, बहनों को अपने वीरों के ऊपर बड़े मान हुआ करते हैं, लिहाजा अय्युकुम अहसनु अमला, जिंदगी ऐसे गुजार कर जानी है जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा कर गए हैं।
इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी। रब तआला की जात ने फरमाया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम रब तआला की जात के साथ मोहब्बत करते हो और ये चाहते हो रब तआला की जात तुम्हारे साथ मोहब्बत करे, फत्तबिऊनी, बस तुम मेरी इत्तिबा करना। मैं और आप हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कितने ताबेदारी कर रहे हैं, मैं और आप हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कितनी फरमाबरदारी इताअत गुजारी कर रहे हैं। मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, यूरोप की गुलामी पे रजामंद हुआ तू, यूरोप की गुलामी पे रजामंद हुआ तू, मुझको तो गिला तुझसे है, यूरोप से नहीं। मैं और आप देखते हैं यहूद और नसारा किस तरह उठ रहे हैं, किस तरह बैठ रहे हैं, किस तरह लिबास अपना पहन रहे हैं, किस तरह खुशी और गमी अपनी कर रहे हैं। ये सारे के सारे तरीके हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के छोड़कर नऊज़ बिल्लाह यहूद और नसारा के तरीकों को अपना रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमा दिया, तुम मेरी ताबेदारी करोगे, तुम मेरी इत्तिबा करोगे, दुनिया के अंदर भी कामयाब हो जाओगे, आखिरत के अंदर भी कामयाब हो जाओगे। किसी कहने वाले ने बड़ी अच्छी बात कही, ऐ सोने वाले रब को राजी करके सो। बिल्कुल आखिरी बात, ऐ सोने वाले रब को राजी करके सो, क्या खबर तू उठे न उठे सुबह को, और क्या खबर तेरी सुबह होनी भी नहीं, और क्या खबर के सुबह तू हो जेरे जमीन। मकसद असरी आ रहा है, बिल्कुल आखिरी बात, ऐ सोने वाले रब को राजी करके सो, क्या खबर उठे न उठे सुबह को, और क्या खबर के सुबह तेरी होनी भी नहीं, और क्या खबर के सुबह तू हो जेरे जमीन। मौत ठहरी आने वाली आएगी, जान ठहरी जाने वाली जाएगी। मौत ठहरी आने वाली आएगी, जान ठहरी जाने वाली जाएगी, रूह रग रग से निकाली जाएगी, एक दिन तुझ पे खाक डाली जाएगी। मैंने काटन पहनी हुई है, मैंने बोस्की पहनी हुई है, मैंने करंडी पहनी हुई है, मैं मट्टी का लगना बर्दाश्त नहीं करता। मेरे दोस्तों, मेरे और आपके अपने ही होंगे, मनों के नीचे मट्टी के अंदर दफन कर देंगे, फिर पता चलेगा। ऐ सोने वाले रब को राजी करके सो, क्या खबर उठे न उठे सुबह को, और क्या खबर के मेरी सुबह होनी भी नहीं, और क्या खबर के सुबह तू हो जेरे जमीन। मौत ठहरी आने वाली आएगी, जान ठहरी जाने वाली जाएगी, रूह रग रग से निकाली जाएगी, एक दिन तुझ पे खाक डाली जाएगी। पहलवानों को बिछाड़ा मौत ने, अरे खेल कितनों के बिगाड़ा मौत ने। हर कब्र में मैयत उतरनी है जरूर, जैसी करनी वैसी भरनी है जरूर। हर कब्र में मैयत उतरनी है जरूर, जैसी करनी वैसी भरनी है जरूर। लंदनों पेरिस के सपने छोड़ दे, एक अल्लाह ही से नाता जोड़ ले। बेवफा दुनिया पे मत कर एतबार, बरोज़े कयामत बेटा बाप को नहीं पहचानेगा, बाप बेटे को नहीं पहचानेगा, माँ अपने बेटे को नहीं पहचानेगी, बेटा अपनी माँ को नहीं पहचानेगा, भाई बहन को नहीं पहचानेगा, बहन भाई को नहीं पहचानेगी। बेवफा दुनिया पे मत कर एतबार, एक दिन होगा तो मौत का शिकार। 4 दिन के हैं ये रंग गुल, और हकीकत में खार है दुनिया। हर कोई कहता है मैं यार इतना बैंक बैलेंस बना लूं, मेरे चले जाने के बाद मेरे बच्चे खुश रहें, मुझे दुआएं देते रहें, ये कहते रहे कि हमारा बाप हमारे लिए बड़ा कुछ बना के गया। गौसे आदम रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं, वो फरमा कर गए हैं, इकट्ठी तू कर रहा है, गर्मी और सर्दी का तुझे पता नहीं, हलाल हराम का तुझे पता नहीं, जायज नाजायज का तुझे पता नहीं, हिसाब तुझे देना पड़ेगा। दुनिया के अंदर मजे दूसरे करेंगे, या आजकल जो माहौल चल रहा है लड़ेंगे तेरे बारिश। इकट्ठी तू करके जा रहा है, तेरे पीछे लोग लड़ते रहेंगे, रोते रहेंगे। एक भाई भाई को अदालतों में कचहरियों में खींच रहा होगा, घसीट रहा होगा। मेरे दोस्तों, औलाद को तालीम देकर जाओ, हलाल हराम जायज नाजायज का फर्क देकर जाओ, ताकि लोग कल को ये कहें यार फलां के बच्चे बड़े समझदार हैं, बड़े समझदार हैं, रोजाना कुरान भी पढ़ते हैं, मंदिर भी पढ़ते हैं। आज मैंने देखा अपने अब्बा मरहूम का नाम लेकर दुआ कर रहे थे। अगर हम उनको कुछ तालीम देकर जाएंगे, अगर नाउज़ बिल्लाह ये दिरहम और दिनार बैंक बैलेंस जायदाद विरासत देकर गए, तो फिर मेरे दोस्तों आपस के अंदर लड़ते रहेंगे, मालो जायदाद को गिनते रहेंगे, 2 जमा 2 4 के चक्कर के अंदर रहेंगे। मुझे और आपको कुरान पढ़कर कोई नहीं बख्शेगा। बेवफा दुनिया पे मत कर एतबार,
ایک دن موت کا تو ہوگا شکار. 4 دن کے ہیں یہ رنگ و گل اور حقیقت میں خار ہے دنیا. ایک پل میں ادھر سے ادھر، ایک پل میں ادھر سے ادھر، 4 دن کی بہار ہے دنیا. زندگی نام رکھ دیا ہے کس نے، زندگی نام رکھ دیا ہے کس نے، موت کا انتظار ہے دنیا. جو یہ ٹوٹے ٹوٹے لفظ کہیں گے، رب تعالیٰ کی ذات مجھے آپ کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.